refer to this. Okay, so this is Raj Yogas. Raj Yogas, आपको पता है कि Raj Yogas play a very important role in the analysis of the Kundli, and a person get auspicious result in a life if auspicious yogas are forming in a Kundali. Like it is important for the Mahadasha, Antardasha of the planet involved in the Raj Yoga. So when the Raj Yoga events happen, like when your first house dasha, fourth house dasha, seventh house dasha, and 10th house dasha in your kundli are known as the Vishnudhan. Okay, so these are the basically mainly for the Raj Yoga. So if the planet is sitting in these houses, or if the lord of these houses will trigger the events. How that will trigger the event? When the Mahadasha or Antardasha will start. So you have already read it about the Mahadasha and Antardasha, about this one. So this is, you know, that Mahadasha and Antardasha, hai na? Right. Anywhere if you'll start, then just let me know. So first house means this one, means Mercury, Mahadasha. Fourth house means Sagittarius, means Jupiter Mahadasha or Antardasha. 12 means Pisces, Jupiter Mahadasha or Antardasha. Then again 3 means is Gemini, means Mercury Dasha Mahadasha Antardasha. And if Saturn or Sun is also, because that is also sitting in the fourth house, agar inka bhi Dasha Mahadasha aati, then also it will trigger it. Raj Yogas. So those basically these four houses we call the Vishnu sthanas. Those houses are known as the Kendras. You know that these are the four houses are the Kendras. In the same way, fifth, ninth in the Kundli are known as the Lakshmi sthan. So if Kendras means 1, 5 and 9 means 2 number. 6 means 1 first house. 5 means the where the 10 number is written. And the 9 means where the 2 numbers. If these are the Kendras sthan, which is the Lakshmi sthan, that is also trigger your Raj Yogas. How? In your Kundli are known as the Lakshmi sthan. These also known as the trine houses. Raj Yoga is formed when the Kendra house or Vishnu sthan form a relationship with the trine house or Lakshmi sthan. Raj Yoga is considered the auspicious or the Kundli. So means if suppose first house sitting in the fifth house sitting in the seventh house, fifth house sitting in the fourth house, or anywhere in here and there. So that is, it will trigger. And at the same time, if the planet is sitting in this one, in these houses, and they are moving from here to there, then also it will be triggering when the Dasha and Mahadasha will be coming. इतना मतलब समझ में आ गया? हाँ, Okay. फिफ्थ का हाउस कहीं भी बैठेगा मीन्स, हाँ, या means सिर्फ केंद्र Saturn, और त्रिकोण में? yeah, Saturn is a Kendra. It will go into the first house, means where the 6 number is written. Saturn will go here in the fourth house, means Saturn is already here. So means Vishnu is Lakshmi sthan goes into the Vishnu sthan. So Raj Yoga is happening. Where it Okay. is happening, it triggering on the fourth house. Means the person will have a maybe good house or will be happy in this house. The house will always doing some kind of, because it's a Rashi also will impact, right? Because 9 Rashi means Sagittarius. Sagittarius 9 house kya Sagittarius. hai? 9th house is the Dharma's house. So Sagittarius Right. is there. So person is more religious person, will be happy, try to do a lots of puja or some dharma havan or something like that. Will doing it. Okay. And fifth house is हमारा पूर्व जन्म, like past life, and that is also he's bringing from पूर्व जन्म to here, the fourth house. So that you can consider as it's a Raj Yoga. Same way, Saturn is suppose fifth house Saturn, or Venus also you can consider. Venus is in first, fourth, seventh, or 10th house. That is also giving you a Raj Yogas. One more Raj Yogas, 9th and 10th house is the Dharma Karma Yogas. That Didi have already told you, right? So Dharma Karma, Dharma, 9th, Karma, 10th house.
So we are using as a dharma karma raj yogas. तो कहीं पर भी होगा बनेगा वो. Okay. Yeah. So that is the same thing is written. Raj Yoga considered very auspicious for the native. If any of the Raj Yoga form in the inauspicious house of the your Kundli, their auspicious result will be reduced. The result of the Raj Yoga will be reduced if the planet in Nilanda afflicted or placed in a bad house. If the Raj Yoga is formed in the Kundli is strong, then you will be blessed with the kind of. Okay. So if suppose first house sitting in the sixth house, first house sitting in the eighth house, first house sitting in the 12th house. So what will impact this sixth house is the bad house. यहाँ पर क्या है हमारा diseases, enemies, right? लोग शत्रु, और क्या क्या Competition. competition है Competition. तो मतलब but hard life, enemies भी है. The person will get a competitors. हमेशा वो competitors रहेगा. But at the same time diseases भी रहेंगे कि because the person is always ready in fighting mode में रहेगा, right? तो उसको अपनी health की जरूरत चिंता नहीं करेगा. person जो है वो health conscious नहीं होगा. तो वो अपना कंपटीशन में झगड़ा जब हो रहा है वहीं पर अपना सॉल्व करने में लगा है. अपने डिस्प्यूट सॉल्व करता है. पर्सन हु हैज लॉट्स ऑफ एनिमीज एंड देन डिस्प्यूट आल्सो इज लुकिंग इनटू द सिक्स्थ हाउस. तो वो इन्वॉल्व हो रहा है सिक्स्थ हाउस की सारी एक्टिविटीज में. अगर बच्चा है कंपटीशन में वो पक्का पार कर लेगा. इफ देयर इज अ मार्स राहु, लाइक सपोज हियर राहु एंड मून, द पर्सन विल ऑलवेज बी अ विनर. सो उसका कोई भी दुश्मन होगा वो उसके ऊपर जीत ही जाएगा. राहु का ये यहाँ पर सिक्स, बिकॉज मेलेफिक प्लैनेट 3, 6, 11th, 8 8 में अच्छे होते हैं. 11th में भी अच्छे होते हैं. 11th में जिससे ये रावण ने अपने पुत्र के सारे ग्रह 11th में डाल दिए थे. वाई? बिकॉज 11th में सारे ग्रह आपको बेनिफिशियरी होते हैं. वॉट एवर दर इट विल बी देयर, हमेशा वो लाभ ही देंगे आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट देंगे. सो हाँ, सो 8th में एंड 12th में. तो अगर यहाँ पर चले जाते हैं केंद्रास के हाउस तो वो बेकार हो जाते हैं. वो उतने फलभूत नहीं होते. दे आर नॉट गिविंग यू द रिजल्ट व्हाट दे नीड टू गिव इट. सपोज कर्मा 10th house, it is going in the 8th house. Mean the person automatically break in the career because career is going in the 8th house. Or the person, if it is occupying the 8th house and making the career in the 8th house itself, then that person can easily make their own good karmas. मीन्स कहीं पर भी जॉब लग जाएगी. जैसे कि दीदी भी करियर रिलेटेड पढ़ाएगी तब ज्यादा समझ में आएगा. ये इस हाउस के जैसे कि रिसर्च पीपल आर डूइंग ए PhDs. बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही है? जैसे पीपल आर, रिसर्च वर्क हो गया, हाँ रिसर्च वर्क हो गया, PhD कर रहे हैं. एंड ऑकल्ट हो गया. ऑक्सफर्ड हो गया, CS वगैरह भी थोड़ा सा असिस्टेंट वगैरह भी जो है हम्म. वो गाइड करते हैं. तो उस तरीके के इफ यू आर डॉक्टर. डूइंग दैट काइंड ऑफ, हाँ डॉक्टर भी, इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क देन ये थॉट इज गुड. लाइक ऑकल्ट आल्सो इज गुड. ओके. मेडिटेटर्स, अब आप योगा कराते हो, दैट इज आल्सो गुड. तो वही कर्म है एंड दैट इज गुड. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट द पर्सन हु इज अपोजिट ऑफ दैट वर्क, तो उसका ओके. बार 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 अगेन एंड अगेन दैट हम्म. पर्सन इज, दैट करियर इज ब्रेकिंग इट अप. एक सेकेंड गिव मी. ये 8 में करियर कहाँ से आ गया? नहीं, वो कह रही है कि अगर करियर वाला 8th हाउस में चला इसमें गया, चला 10th गया. हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, तो वो कैसा करियर हम्म. देगा? वो इस तरह का करियर देगा जो ऑकल्ट में चला जाएगा और ये नहीं, रिसर्च बाकी में जा प्लैनेट्स सकते भी हैं। तो उसको 8th सपोर्ट हाउस कहाँ करेंगे से आ अगर. गया कि, हाँ 8th हाउस कैसे आ गया? जैसे सपोज 10th हाउस लॉर्ड मरकरी. ओके, इफ मरकरी इज गोइंग इनटू द 8th हाउस मींस वो केंद्र का हाउस 8th में चला गया एंड इट डिस्ट्रॉयड. अपने जो क्वालिटी थी उसकी चली गई. सॉरी,
सॉरी मोनिका, अच्छा इसमें जो 8th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है ना, ओके ओके। हाँ हाँ, हम इसलिए हाँ, मैं दिखा रही हूँ चार्ट, सो दैट इस यू विल हाँ अंडरस्टैंड इस इट। चार्ट, हाँ हाँ, हाँ, ओके इस ओके। चार्ट में अब कोई भी हो, मतलब हाँ डजेंट मैटर, हाँ यहाँ पर कोई भी हो। टेंथ हम्म, हाउस, सपोज दिस इज अ मरकरी, इट कुड बी अ हाँ, वीनस एज वेल, इट कुड बी एनीथिंग, यहाँ टू नहीं लिखा नहीं, होता हाँ तो नहीं, वीनस। हाँ या हाँ, ठीक है ठीक है। suppose this Mercury, if it is sitting into the eighth house, means one number की राशि में, if the Mercury is sitting in a one number राशि in eighth house, that means their quality is destroying until unless you are utilizing this eighth house. Then you can maintain and then increase your karmas, or you can get the benefit. Otherwise, उसका बार बार again and again that career will be breaking. Job चली जाएगी, person will lose the job, maybe person needs a promotion, person is not getting a promotion, और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वो तो एस्पेक्ट एंड ऑल सब देखेंगे फिर उसके बाद। ये यू अंडरस्टैंडिंग राइट कि 8th हाउस हाँ एंड हाँ 10th। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। और इसके करियर में जब दीदी बताएगी, तो देन करियर मीन्स लाइक 8th हाउस रिलेटेड देयर इज अ करियर एज वेल। सो हाउ, इफ द पर्सन वांट्स टू मेक श्योर कि उसका करियर ना जाए, देन पर्सन शुड हैव टू ऑक्युपाई दिस 8th हाउस, अदरवाइज 8th हाउस विल क्रिएट ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर करियर। ठीक है, आगे बढ़े, कहीं पर भी मुझे रोक हाँ। लीजिएगा बिकॉज मैं फ्लो। ओके, यू कैन चलो। स्टॉप मी एनी टाइम। ओके, सो दिस इज राजयोगास, विपरीत राजयोगास। सो यू नो हम्म। विपरीत राजयोगास, और यू हाँ, वांट मी टू एक्सप्लेन? ये जैसे 6 का लॉर्ड 8 में चला जाए, 8 का एट 6 में में चला चला है। जाए, 12th में हाँ, चला जाए। यस, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज हो जाए, सो क्या होगा? अब आप, हु विल टेल? इफ सिक्स्थ जैसे क्या हाउस है विल कि गो इनटू जैसे द 8th हाउस। अगर मतलब दो प्रॉब्लम्स होंगी तो उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा, उधर मेन प्रॉब्लम आ गई। जैसे माना किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसका मतलब जैसे 6 का लॉर्ड जैसे माना 8th हाउस में एट में वो चला बैठा जाए। है, 8th हाउस में मंगल बैठा है, मार्स बैठा है, और उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, मतलब ये 12th हाउस में बैठा है, फर्स्ट नंबर एरीज। तो वो तब वो विपरीत राजयोग बन के, मतलब जो आदमी का बहुत खराब होने वाला है वो उसका थोड़ा बेटर हो जाए। तो सपोज ए, सो 12th हाउस इज लॉस। लॉस। So if the 6th house is diseases and 12th house is loss, means the person who has a disease will going into the 12th house, means the 12। person can easily will will not have so many diseases. Like हमने कहा था ना, हाँ, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज तो गोइंग टू द 6th हाउस, तो मतलब वो उसके उसकी डिजीज हो गई। उसके बट एट द डिजीज का सेम लॉस टाइम हो जाएगा। कंपटीशन, हाँ, कंपटीशन का लॉस हो जाएगा, मीन्स द पर्सन डोंट हैव टू डू द कंपटीशन, मे बी इन ए गुड वे एंड मे बी इन ए बैड वे। लाइक सपोज आपको कंपटीशन ही नहीं करना है, आराम से, मे बी यू आर गेटिंग इजिली एवरीथिंग, मे बी समवेयर इज द राज योगास, एंड यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए जब गए, दैट पर्सन इज वेरी रिच, ऑलरेडी सेटअप, एवरीथिंग इज देयर, दैट फादर हैज a company, he has don't have to give the competition, his like life is easily, he's going outside, doing the study outside of the country, doing the study, already set up everything, तो उसका कंपटीशन का जो लॉर्ड है, मीनिंग खत्म हो इट गया। इज गोइंग इन अ 12th हाउस, मीन्स इज लॉस, मीन्स देयर इज नो कंपटीशन, डिजीज भी नहीं है, वो पर्सन बाहर जा रहा है या फिर बाहर जा रहा है, उसको सर्विस, ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन अ 12th हाउस, मीन्स इट्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और जहां पर वो रहता है वहां नहीं है, तो उसको बेनिफिट ही हो रहा, बट आफ्टर सम लाइक प्रॉब्लम्स उसको, बट वो उसका जो प्रॉब्लम्स है वो जो है उसको बेनिफिट दे रहा है। देयर इज सम ऑलवेज बी ए प्रॉब्लम, बिकॉज 6th हाउस ऑलवेज गिविंग ए प्रॉब्लम, 6 8 12, बट उसका प्रॉब्लम के बाद देन ही विल गेट अ बेनिफिट। सेम वे, यू अंडरस्टैंडिंग राइट? एनीवेयर रिंकू, हाँ, आप जस्ट स्टॉप मी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। इसमें अगर जो उसका मतलब अच्छा है, अच्छी क्वालिटीज है, वो भी लॉस में जाएंगी। तो सिक्स जैसे हाउस आपने में बोला ना अभी क्वालिटीज क्या आएंगे? कंपटीशन। जैसे सिक्स कंपटीशन कंपटीशन। हाउस में करना तो है, हाँ, नहीं कर तो नहीं उसका नहीं, लॉस हो गया ना कंपटीशन है ना। कंपटीशन का, तो उसको कंपटीशन देना ओके। ही नहीं, उसको आराम से मिल गया, जॉब मिल गई फटक से। अच्छा, मतलब देना ही नहीं पड़ेगा। ओके, आई देना थॉट ही कि नहीं अगर पड़ा, देगा तो लॉस होगा। अगर मान लो उसको, हाँ, तो फिर थोड़ा योगास देखना पड़ेंगे, सम योगास, हाउ द एवरी लाइक जुपिटर, वे द जुपिटर, वे द 10th हाउस इज देयर, तो अगर यहाँ पर कंपटीशन देने का टाइम आएगा और कंपटीशन दे नहीं पाएगा, और समथिंग विल हैपन,
कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट उसका कंपटीशन का लॉस हो जाएगा। डिजीजेस भी आप कह सकते हो कि ये इट इज गोइंग, है ना। ओके। So service, if you will go in a, if your career base है, so sixth house is a service providing, sixth house is a routine, तो routine उसकी नहीं रहेगी, routine की loss हो जाएगा। So there is some problem as well, but there's some benefit as well. How you are going to get the benefit? You have to utilize the good points. कि ओके। रूटीन, अगर रूटीन नहीं करा, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम्स आएंगी, बट कुछ अच्छा भी होगा एंड देन कुछ बुरा भी होगा। समथिंग इज गुड, समथिंग इज बैड, दैट पर्सन विल, बट ऑटोमेटिकली, बट इट इज गिव योर विपरीत, विपरीत स्थिति में opposite अच्छा situation रहेगा। he is getting a Raj Yogas in the यस। opposite situation. Like suppose you get stuck somewhere, but in that situation, but you have to go into that opposite situation, and then over there somehow निकल you जाओगे, save yourself. आप आप सेव कर, परेशानी से निकल जाओगे। परेशानी से निकल, परेशानियां आएंगे बहुत आएंगी, लेकिन बट आप निकल उनसे गए। निकल जाओगे, लास्ट में आप उनसे निकल जाओगे। यस यस यस, एक सेकेंड, इस जैसे जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना। हाँ मतलब हाँ, वही ना तुम्हारा कि है जो ना भी सुमिता? इसका है हाँ तो मेरा उसका है, लॉस हो जाएगा। किस में है, कौन से हाउस में, क्या मेरा है? एट्थ और ट्वेल्थ। एट्थ में ए, मंगल बैठा है, और उसका जो हाँ लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में वो तो ट्वेल्थ मैं हाउस में बैठा है। बना दूं क्या आपका? शायद है, हाँ। आई थिंक सो, आई हाँ हैव पर चार्ट, आई एम नॉट श्योर कहाँ पर है। अ, मैंने कहीं सेव तो किया था। डेट बता दो सुमिता, बन जाएगा। 7 अप्रैल 1971, 8:30 मैं, AM। हाँ शायद आई हैव इट, सुमिता। हाँ होगा, नहीं, नहीं है, मे बी शेयर आई कर डेंट दीजिए। सेव इट। मेरा ज्योतिष भूत में होगा। हाँ, आई सेव इट, डेट, टॉरस, टॉरस का है देखना, और 7th हाउस में डेट, जुपिटर है। डेट 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 बताइए। 7 अप्रैल 1971, 8:30 AM। सॉरी, AM राइट, 8:30 AM, हाँ 8:30 राइट। हाँ। स्टेट, जगह हाँ बता सुमिता? दिए, 1 सेकंड, कोटद्वार, कोटद्वार। 1 सेकंड, जरा काम में लगी हूँ तो डिस्टर्ब हो हाँ आई नो, सवेरे सवेरे होता है। स्टेट गई। क्या है? कोटद्वार कोटद्वार। स्टेट, स्टेट है उत्तराखंड। प्लेस है मतलब कोटद्वार, स्टेट है उत्तराखंड। स्पेलिंग बताइए। KOTWDW, फर्स्ट वन राइट। हम्म। I'll save as well, हाँ यार। यहीं सेव कर देती हूँ। ओके, तो आपका 12th हाउस लॉर्ड, इट इज सिटिंग इनटू द 8th हाउस। 8th हाउस। एट, हाँ। हाँ, तो 8th हाउस में मतलब 12वें का हाउस आपका 8th हाउस में गया है, तो विपरीत स्थिति में इफ यू विल सी सम लॉसेस सडनली, मे बी यू विल हम्म। सडनली, लॉस हो रहा है, लॉस का स्वामी कहाँ गया है? गेन, 12th में। सडन सडन एनी इवेंट्स, तो एकदम हम्म। से हो सकता है कि मास कैन गिव यू द सडन गेन, सडन कुछ भी दे सकते हैं, बट इट विल ब्रिंग यू टू द सम अपोजिट सिचुएशन एंड देन गिव इट टू यू। हम्म। इसमें आप थोड़ा सा एवरीडे, मंगल यहाँ पर 8th में, एवरीडे ये चालीसा पढ़ा करिए। पता है क्या है, मैं मुझे लगता है जब वो नीतू कहती है ना, जब भगवान कोई प्रॉब्लम देता है तो उसका सोल्यूशन पहले से ही दे देता है। तो मुझे पता ही नहीं, मैं मतलब मुझे आज 30 साल हो गए सुंदरकांड पढ़ते हुए। हाँ बस, बहुत अच्छा है। हम्म। ये मंगल 8th हाउस में, मंगल की सुंदरकांड या मंगल की हनुमान चालीसा चालीसा। हाँ जरूर से 110% हाँ करनी हाँ चाहिए 8th हाउस में अगर हाँ। है तो।
it's a remedy for you and for your husband as well. हम्म। क्योंकि बिकॉज यहाँ ये मारक पड़ा है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस इज अ मारक। सेवेंथ हाउस का मारक कौन है? वो सेकंड हाउस है। हम्म। सेवेंथ का सेकंड हुआ, राइट। हमारा फर्स्ट हाउस का मारक, हमारा सेकंड। सेवेंथ हाउस का मारक नहीं निकाल, गर्म नहीं किया। गिव मी मिनट। सुमिता, ये 8th में मंगल है और 12th हम्म। में बुध है। नहीं तो नहीं, ट्वेल्थ एक, में हाँ नहीं नहीं, बुध मत देखो, राशि देखो, नंबर हाँ 1। एक का हाँ, एक मार्क राशि तो पे। है। मंगल है, मंगल हाँ एक्सचेंज हुआ इधर तो हाँ हाँ। 8। हम्म। अच्छा और 9th की और राशि का शनि, लॉर्ड शनि इसमें है है। ना यहाँ पे बैठा, वन, शनि भी बैठा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अच्छा। इसमें जो ट्वेल्थ हाउस में, इसमें शनि सैटर्न भी बैठा हुआ है। हाँ तो वन हाँ, नंबर की राशि जो है एरीज इज, एरीज का लॉर्ड इज मंगल। मार्स मंगल इज सिटिंग हम्म। इन द 8th हाउस। 8th हाउस। जो ये, हाँ, हाँ इसमें बैठा हुआ है ना, और इसका 12th लॉर्ड का इसमें बैठा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। 12th तो इधर बुध और सैटर्न है। ये तो 11th हाउस, दिस इज 11th हाउस ना। अच्छा, राशि इधर इज सन। Pisces. Yeah, first हाँ house, हाँ second house हाँ till 12th house, and the 11th house have a Pisces राशि। 11वां हाउस में Pisces राशि है। हाँ 12th हाउस तो ये है ना, हाउस। ट्वेल्थ हाँ हाउस में ये। हाँ वन नंबर है एरीज। एरीज मीन्स हाँ तो लॉर्ड ये इज लॉर्ड है, मंगल। मंगल और हाँ मार्स मंगल इज सिटिंग इन द 8th हाउस। 8th हाउस। I'm हाँ। talking about not the Rashi, I'm talking about the houses. एक्सचेंज, एक्सचेंज हो गए ना दोनों का। एक्सचेंज कैसे हुआ? मुझे समझ ही में अरे नहीं आ रहा एक्सचेंज है। नहीं हुआ है, एट्थ का एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज सुमिता जी, नहीं, एक्सचेंज नहीं नहीं हुआ एक्सचेंज है, नहीं मतलब नहीं। इसका लॉर्ड यहाँ बैठ गया है। नहीं नहीं, एक्सचेंज इसका अलग जो हाँ, होता है। एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज होता नहीं, है इसका कि लॉर्ड वो तो मंगल में नहीं नहीं, बैठ गया है। एक्सचेंज तो अलग हो गया, हाँ विपरीत मतलब इसका लॉर्ड यहाँ जाके बैठ गया है। विपरीत राजयोग दे रहा है इनको कि 12th हाउस का लॉर्ड इज सिटिंग इन हाँ 8th हाउस लॉर्ड, 8th दैट इज हाउस कॉल्ड अ विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, जो कि लॉर्ड है विपरीत ना हम्म, वो यहाँ स्थिति में, आके बैठ गया। समझे। ओके विपरीत ओके स्थिति ओके, में समझी समझी लेके समझी, जाएगा सॉरी। उनको। हाँ हाँ हाँ, हाँ। प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है बहुत हम्म प्रॉब्लम्स आए, हम्म बिकॉज मंगल इज गिविंग हम्म द सर्जरी एंड ऑल। हो सकता है कुछ बड़ी सर्जरी देनी हो, बट वो छोटी हम्म। सर्जरी में निपटा देगा। निपटा गई। यस, अरे ऐसा कर आपने देगा। मेरे में भी देखा था ना, 5th का लॉर्ड 8th में था। 8th का 5th में था, विपरीत वाला जो हमने देखे थे। तो विपरीत, वो तो विपरीत मतलब नहीं हुआ, वो एक्सचेंज हो गया। वो एक्सचेंज था, हाँ सॉरी। एक्सचेंज हुआ ना, दैट इज कॉल्ड हाँ वो एक्सचेंज। एक्सचेंज था। If the हम्म। fifth house lord is sitting in the 8th house, 8 lords is sitting in the 5th house, that is called the exchange. एक्सचेंज। So एक्सचेंज। this is a Viparit Rajyog. So means if she is having a issue, she is going into the hospital because 12th house is a hospital. माँ कुछ सर्जरी होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, बट वो सर्जरी वो बड़ी ना इजीली हो हो करके जाएगी। छोटी हो करके मंगल सेव कर देंगे, एंड शी इज ऑलरेडी डूइंग ए रेमेडी। तो ये मंगल उनको बचा लेगा, बिकॉज तो सुंदरकांड अगर करती है ना। फिफ्थ का हाउस 8th में है, तो वो उसमें एक्सचेंज हो गया करियर ना। से रिलेटेड नहीं। अरे करियर, उसका नेता करियर जब से उसमें, नहीं है, करियर से नहीं है, करियर पढ़ाई दिस से 10th है, हाउस, बच्चा पढ़ा। से। पढ़ाई से and बच्चा से। Eight, अच्छा। this is the 10th house is a career house, which is going into the 8th house, then it is breaking in your career. All ओके you have to opt the 8th house to maintain your career successfully. ओके। अच्छा, 5th में सिर्फ बच्चे और पढ़ाई बच्चे और का पढ़ाई, kids चेंज। and study. If the kids is going to the 8th house, that kid maybe will do the 8th house related activities. सो मेक श्योर कि वो बड़ा जब ओके होगा तो थोड़ा ध्यान देना कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना वो। यहाँ पर कौन सा प्लानेट है, राशि क्या है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके। कि वो हो सकता है इस टाइम की अच्छा वीनस पढ़ाई और करे, मार्स है। हम्म। और हो सकता है कि अगर कुछ एस्पेक्ट अच्छे नहीं है तो गलत आदत भी लग जाती है बच्चे को, तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा डीप, बिकॉज ओके। 8th में जा मोनिका, रहा है 8 ना।
हाँ, एथ हाउस में मंगल रहने पे हिडन प्रॉपर्टी भी तो देता है, नहीं? हाँ, वो प्रॉपर्टी भी देगा आपको। यस, बिकॉज दिस इज अ जो है आपकी इन एंचेस्टर प्रॉपर्टी है ना, सॉरी हम्म एंचेस्टर प्रॉपर्टी है ना, तो वो किस टाइप की देगा? हम्म लैंड वाली देगा मोस्ट प्रॉपर्टी। और अब जैसे माना मेरे उसमें पति मुझे प्रॉपर्टी दे सकते हम्म। हैं, हैं? हाँ। क्या क्या क्या? मैंने कहा मेरे उसमें ये है कि मुझे हस्बैंड प्रॉपर्टी देगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही लेते हैं। हस्बैंड मिल गई बात। हस्बैंड या इन लॉज का भी प्रॉपर्टी आता है इसमें, नहीं? इन लॉज का हाँ, तो आता है। हाँ। इन लॉज आते हाँ हैं। इन लॉज का। और ये हाँ। मास बेसिकली देता है आपको प्रॉपर्टी, मतलब लैंड के लिए ज्यादा देता है। ये आपके इन लॉज का घर है, दिस इज योर इन लॉज हम्म हाउस। एथ तभी वाला। 8 वाला तो इन लॉज हम्म। प्रॉपर्टी यहाँ पे देंगे। Husband is 8. He is also going in, sorry, not 8. 8 Rashi means it's a Scorpio Rashi, that he is also going into the 8th house. एट्थ So, हाउस, हाँ। in उनका करियर में मतलब वो करते क्या है? What he is doing? वो है, बिजनेस हेड है, मल्टीनेशनल कंपनी। वो डोमेन क्या है? रिलेटेड टू, मतलब उनका क्या है ये, मतलब जो ये होता है ना पेस्टिसाइड वगैरह, तो वही है जो बिजनेस, मतलब जमीन के अंदर का काम है, वही है उनका काम। जमीन के अंदर। सी, हाँ, मतलब डिड यू सी जैसे दैट? लैंड। जमीन टर, के अंदर हाँ मतलब हाँ। ठोस सी टर्माइट, चीजें निकालनी। हाँ, सी 8th हाउस का हाँ काम कर रहे टर्माइट, हैं। एट्थ हाउस So का काम है ना, वही वही है। see how the आप इनकी कुंडली से you can see what husband is doing, correct? And ओ। हाँ। which type of karma he is doing it? अंदर से 8th house, मंगल केमिकल। सो अभी जब करियर दीदी पढ़ाएंगे देन ही शी विल टेल यू हाँ मंगल क्या है, टेक्निकल है, राहु है तो क्या है, किस टाइप का है। एंड देन सैटर्न इज गोइंग, देन विच टाइप ऑफ वर्क ही इज गोइंग इट। सो ओके। सो ये जो उन्होंने बोला टर्माइट टेक्निकल पूरा हो गया, राइट? मास इज टेक्निकल। हम्म। तो वो किस टाइप का काम कर रहा है? 8th हाउस विद द रिलेटेड मार्स टू, रिलेटेड, हाँ फायरी प्लानेट। फाइन, It's a fiery planet is going into the fiery Rashi. 9 number Rashi is a fiery, like 159 is a हम्म। fiery शायरी। Rashi, right? So राइट। fiery Rashi, fiery planet. So termite बोला ना, बम हम्म फायर हो गया ना, termite. हम्म। So खोहो अंदर जमीन, inside that he is trying to, वो उस टाइप का काम है। बट किस टाइप का? ही इज बिल्कुल बुलंद टाइप, ही इज हाँ, वेरी स्ट्रांग। Why? Because he is a Mars. His voice will be strong. स्ट्रॉन्ग, He will monitor it. एंड एंड ही विल ओवरकम ऑल हिज सेनापति ना बोलेगा। कॉम्पिटिटर्स ना। हाँ, तो हाँ, मतलब ओवरकम है ना। बिकॉज ऑफ हर चार्ट यू कैन इजिली सी कि वो हस्बैंड कैसा है, कहाँ काम कर रहा है। रिंकू बिल्कुल सोच रही है थिंकिंग अबाउट। मैं ये सोच रही हूँ कि सेवन, ये तो ठीक है कि एथ हाउस से आप बता रहे हो, सेवेंथ हाउस से हस्बैंड का बता रहे हो, तो एथ हाउस में कैसे जा रहे हो आप? ये 8th अरे स्कॉर्पियो। एट्थ हाउस, एक ये एट्थ हाउस है ना। नहीं नहीं, नीचे जो 9 मंगल जो है। नाइन का हाँ, मैं देख रहे हैं बताती ना। हूँ, एक सेकंड, हाँ। एक ही क्वेश्चन हाँ। करते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये 8 नंबर राशि इज स्कॉर्पियो हाँ। हम्म। एंड द लॉर्ड ऑफ द स्कॉर्पियो इज द मंगल, मार्स। हाँ। हाँ। So where the 8th house means 7th house अच्छा, lord means Mars समझे। is going हाँ। into the हाँ। 8th house. हाँ। So हाँ। 8th हाँ। house means Mangal is here. Which Rashi he is sitting? 9 number Rashi. 9। Which हाँ। type of Rashi it is? Fiery Rashi. Which type हाँ। of planet is? It's a fiery planet. Is very हाँ। strong. Which house he is going? 8th house. So he has to do here 8th house type of work. If he is not doing it, then he is having a problem. अच्छा। He ओके। has to do it. He automatically switch it. So you understand, right, Rinko? हम्म। तो हाँ हाँ, देखिए उनकी बिल्कुल। कुंडली से कैसे हम निकाल रहे हैं, छोटी सी चीज है, हम्म। वेरी हम्म। स्मॉल थिंग। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, हम तो योगा पढ़े थे, कुंडली पढ़ने लगे। ओके।
So और कौन सा योग है इनके में, वो देख so this लेते is a Vipreet Yoga, Vipreet Raj Yoga. So we finish it up. अब धन योगा, हैं। तो धन कहाँ मिलता है हमें, पैसे कहाँ मिलते हैं, वेयर इज दैट मनी? सेकंड So when सेकंड money is in the second 2 and house, 11, and then सेकंड gain is the 11th house. 11th 11th Second house, house is considered as a dhan yoga in the astrology. 11th house is the gain. gain, So without, if you have a dhan but you're not gaining it, means its expenses will be there. You are getting a money, but it is not converting into the gain. So we have to check both house for your money. Okay. And second house is also accumulated wealth. ये like कि आपने fix कर दिया. You go to the bank and then fix it for 1 year, right? So that is also important for your accumulated wealth. When these houses create a relationship with each other or the lord of the Kendras and Trikonas, Dhan Yoga is created. House like 1, 5, 9, 10 is also very important to form a Dhan Yoga. When second house lord makes a relationship with the 11th house lord, or when second house lord is in the 11th house, 11th house lord is with the second house, there is also exchange between them. They are expecting to each other a powerful Dhan Yoga as well. So second house means this one where the 3 number is written. If the Mercury is associated with the 11th house 11th, where the 12 number is written, means Mercury and Jupiter is making a relationship with each other. That means it is making a Dhan Yoga. धन योग। So एक Jupiter बार is एक sitting. बार एक बार और बताओगे मोनिका ये में प्लीज? ये मोनिका, ये चार्ट पे आप लिख के बताओगे कि कैसे हाँ, होगा? मोनिका एक बार ये थर्ड बताओ कि का तुम्हारा धनयोग 11th में धनयोग जाएगा। ओके बताती हूँ, फिर से हम्म बताती हूँ, स्लोली स्लोली बताती हूँ, ठीक है? हाँ सो इफ द हम्म, सेकंड हाउस एंड 11th हाउस मीन्स 3 number means Mercury, 11th हाँ house 12 number means is a Jupiter is making a relation with each other, then it making a Dhan Yogas. Also, if it is associated with the two, what is written? 1, 5, 9, 10. 1 means where the 2 means Venus, 1, 5 means Mercury, and then which number it is? 9th 10th, means it is Saturn, 9th and 10th, and if it is 10th means it is again Saturn. So Saturn, Venus. So you can see first house is sitting in a 10th house. यस Venus is sitting in a 10th house. ये आपका एकदम सही है टाइम? हाँ हाँ बिल्कुल सही। ओके। मैं एक बना रही हूँ BTR करके सॉफ्टवेयर, उसमें मैं बन जाएगा तो फिर डालूंगी मोस्ट प्रॉब्ली। ये 8:30, मेरा भी 6 o'clock है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट गड़बड़ी होता है। तो वो जब दीदी नक्षत्रास पढ़ाएगी, लाइक हियर यू विल सी द नक्षत्र, राइट? कि सन का नक्षत्र इज मून, मून का नक्षत्र इज मरकरी, तो उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं। जो विल टॉक लेटर, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? ओके, हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो सो इफ इट इज मेकिंग अ धन। रिलेशनशिप लाइक मरकरी एंड जुपिटर इज मेकिंग अ रिलेशनशिप, दैट मीन्स इट इज मेकिंग अ धन योगास। एंड इफ इट इसमें इज अगर एसोसिएटेड, सेकंड सेकंड का लॉर्ड 11th में हो बट 11th का सेकंड में ना हो तब भी धन योग रहेगा ना? हाँ, रिलेशनशिप बना लिया ना आपस में। हाँ, मीन्स ओके, धन कहाँ जा रहा है, गेन accumulated में, कहाँ, वेल्थ कहाँ जा ठीक रही है, है, वेर इट इज गोइंग इनटू द 11th हाउस, मीन्स इट इज गोइंग इनटू द गेन। ओके, सो सेकंड हाउस से में धन जो आपका गेन में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स आपने हो सकता है 5 रुपए लगाए, यू हैव 5 rupees in your हम्म, hand, and you want to put it into some business, so it will convert it into the 10 rupees because your dhan ओके, is going into the gain. और Your गेन धन में जाएगा money, तो तब भी वही है। yeah, हाँ, मोनिका ठीक है, इस चार्ट में बन रहा है धनयोग? इस चार्ट में धन योग डिफरेंट तरीके से बन रहा है, सेकेंड एंड 11th का नहीं बन रहा है। हाँ तो बट आप एक दूसरी चीज बन रही है, क्या बन रही है? 11th वीनस, हाउस इज गोइंग इनटू द 7th हाउस, मीन्स कि गेन इट इज गोइंग, you will get a gain when you will trigger a 7th house. केंद्र, केंद्र में जा रहे हैं ना? केंद्र में जा रहा है, ये गेन वाला केंद्र में जा रहा है। और जब हम्म, अब ये मिलेगा कब? when she जब will इसकी दशा trigger this आएगी। house,
when she will trigger this house. Trigger this house means या तो दशा है या तो या शादी कर एक्सीडेंट या शादी शादी कर कर लें। मतलब शादी जब की होगी तब की बता रही हूँ मैंने। अच्छा, मैंने कहा दोबारा शादी कर ले। नहीं, नहीं। मतलब मैं इस चार्ट धन के लिए बता चाहिए रही तो हूँ। करना होगा सुमिता। अरे धन चाहिए नहीं तो दोबारा ऑलरेडी भी कर करना दिया। होगा। नहीं, ऑलरेडी कर दिया। तो मतलब ये है कि शी इज हैविंग शादी के बाद ज्यादा 11। धन मिला हाँ, होगा। तो मीन्स धन कब ये गेन कब स्टार्ट होगा? व्हेन शी विल गेट दिस स्टार्टेड गेटिंग द गेन व्हेन when she will trigger this seventh house. When she will trigger the seventh house means whether the dasha will come, whether the Mars dasha or Jupiter dasha, or she will trigger means she will get married. Then it started like she is getting a हम्म अब gain. आपको जब Means धन चाहिए gain का पति से ले लो, मतलब पति को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वाइफ को मिलेगा। बस इट्स मिलेगा अंडरस्टूड। ही। नहीं, इट्स पति ठीक मैं है। अंडरस्टूड। ये मिस की मोनिका, ये पति से कैसे मिलेगा इनको? सो अरे सो पैसा व्हेन पति सो कमाएगा मुझे देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे चार्ट में पता करना है। चार्ट ओके में 11 का सो 11th सो हाउस का जो प्लेनेट है वो 7th हाउस हाँ में बैठा है। So 11th house planet is Jupiter. Okay. हाँ। And अच्छा, sitting in a जुपिटर seventh, सेवेंथ हाउस, समझी। और seventh अगर में। नीतू, अगर मैं ये मोनिका, अगर ये जो जुपिटर है यहाँ पे, अगर वो हम्म ये इसमें हम्म बैठ जाता सेकंड हाउस सेकंड में, में। तब हाँ, धन योग होता ना। नहीं ये भी आपको डिफरेंट तब तरीके भी से धन योग गेन दे रहा होता है है। नहीं तब। नहीं, एक 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 बात पूछ रही हूँ हाँ मैं हाँ जो धन जा हाँ, तब ये है कि आप खुद हो सकता है कि धन मतलब आप कुछ करते निकाह बनाते कुछ करते खुद से। या आपके सेल्फ हाँ अपने सेल्फ से अपने घर करते जो हैं। फैमिली है क्योंकि आपकी फैमिली सेल्फ। काफी धनवान होती। बिकॉज दिस इज योर ओन हाउस राइट योर फैमिली हाउस जहाँ मम्मी पापा है। सो हाँ आपके हम्म फैमिली में बहुत ज्यादा वेल्थ होती है। जैसे जब आप पैदा होते तो मम्मी कहती कि जिस दिन से बेटी आई है तब से सिल्वर स्पून। पापा का हाँ सिल्वर स्पून लेकर के आई। पापा का प्रमोशन हो गया हम्म बिजनेस है तो बिजनेस बढ़ गया। हम्म तो ऐसे होता अच्छा। बिकॉज गेन इज गोइंग इनटू द धन मीन्स परिवार में जा रहा और है। परिवार इसमें विल क्या हुआ हैव कि अ पति मनी पति का हम्म गेन हुआ है ना, पति को पैसा मिला मीन्स मेरे यहाँ। मीन्स ये हम्म तब आपको गेन होगा जब आप शादी करोगे या फिर दिस दशा विल स्टार्ट। क्योंकि मेरे हस्बैंड का राइज मेरी शादी के बाद ही हुआ है। हाँ तो बस हो गया देखिए सी। सो कैसे ट्रिगर हुआ मतलब ही इज गेनिंग मीन्स शी इज गेनिंग राइट। हम्म डिफरेंट तो है नहीं हाउ शी विल गेट इट। सो ये हम जब चार्ट जब भी पढ़ेंगे विल सी विच हाउस इज गोइंग वेयर एंड ओके व्हाट द राशि इज देयर। राइट। तो तो वो थोड़े दबंग टाइप से होंगे बिकॉज इज हाँ। स्कॉर्पियो मंगल की राशि है। ठीक है हम्म, मंगल सेनापति है इज आर्मी। सो आर्मी मैन कैसा होता है हाउ द आर्मी मैन लुक्स लाइक। दबंग, मैं देखो कितनी कमजोर हूँ मारे को। सो ये ऑटोमेटिकली एंड दिस इज अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट हम्म एंड ब्लेसिंग प्लैनेट। तो जुपिटर ब्लेस हाँ, कर रहा है यहाँ पर जा करके। लग्न को भी ब्लेस कर रहे हैं। अरे लग्न को भी ब्लेस कर रहा है इनके कि मतलब ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट एंड ही विल अर्न यू विल गेट इट। सो शी विल नॉट हैव एनी राइट। प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ओके। नेक्स्ट ये समझ में आ गया राइट। हाँ ये आ गया, धन हम्म योग धन समझ में आ गया। अब धन योगा में दिस द धन योगा बिकम मोर पावरफुल व्हेन दे आर फॉर्म विद द केंद्रास। अगर केंद्रास में जैसे अब इनका 12th का 11th हम्म का 7th में गया है। इफ द लॉर्ड 159 इज ऑल्सो ज्वाइन दिस कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट दिस धन योगा इंक्रीज मल्टीफोल्ड। अगर ये 59 के साथ ये 159 के साथ भी अगर ये धन योगा बन जाते हैं तो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर ओके like fifth house lord and lord 9,000 in the fifth house they are also aspecting each other for their exchange. Lagna lord is involving it again increase the impact of this dhan yoga. लग्न लॉर्ड भी जो है इस तरीके से अगर इसमें बैठ जाता है लग्न लॉर्ड स्वयं बैठ जाता है। लग्न लॉर्ड मीन्स वीनस इज सिटिंग इन 11th हाउस। वीनस इटसेल्फ इज सिटिंग इज इन 10th हाउस दैट इज आल्सो वेरी गुड कि लग्न लॉर्ड को मतलब बहुत एक्टिव है बहुत स्वीट है इस टाइप से उनको लविशली अच्छा लगेगा आगे मतलब
इस टाइप से, बिकॉज शी इज मेकिंग अ, उनको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना सुमिता जी? किस चीज के लिए? कुछ भी बिकॉज जैसे लकी करना लॉर्ड है इज अपना गोइंग मतलब प्लान। इनटू द 10th हाउस, इतना आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती होगे, अपना नहीं काम नहीं, फटाफट फटाफट खुद फटाफट। करते हैं, हाँ। हाँ, वाई? बिकॉज शी इज सिटिंग एज ए वीनस, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए सैटर्न बैठ के तो अलग बात थी, मैं लेविशली शी इज डूइंग हर वर्क, शी डजंट रिक्वायर्ड इट, शी ऑलवेज रेडी टू डू द वर्क। कोई भी टाइप का वर्क आएगा, शी विल बी रेडी, शी विल नेवर से नो। मैं प्लम्बर से लेके सब काम करती एंड शी विल बी हैप्पी, अपना घर भी अच्छे से ने करेंगे। क्योंकि वीनस है। हम्म ओके। और मरकरी कहाँ बैठा है? मरकरी है तो जुपिटर, हूँ। मेरी 12th में, 12th में। 12th और हाउस में बैठा जुपिटर है। जुपिटर यहाँ 11th को भी देख रहा है, वाई? अच्छा, एस्पेक्ट पूछते हैं। ओके, सो जुपिटर का व्हाट इज द एस्पेक्ट फॉर द जुपिटर? फाइव, थोड़ा ध्यान दीजिए। 11 पे जा रहा है। हाँ, 5 हाँ, पे जा रहा है ना, 11 पे। 5 पे जा रहा है, 5। मीन्स वो गेन तो दे रहा है थ्रू हस्बैंड, एंड हस्बैंड इज ऑल्सो लुकिंग एट द गेन साइड, राइट? यहाँ पर जुपिटर इज लुकिंग एट हाँ। इनटू दिस दिस गेन। 11th हाउस। सो वो अपने राइट। आप जैसे ट्रिगर हो गए, वो खुद ही कमाना शुरू कर देंगे, यू विल स्टार्ट गेनिंग इट, because Jupiter is giving a फिफ्थ aspect, हाउस। fifth aspect on the 11th house, and 11th हाउस। and and 7th एक्सपेक्टेड लगन। हाँ। हाँ, and Sur is there, Sun is there, means ओके। Jupiter is looking into blessing it to the 11th house, at the same time looking for the Sun. So उन्होंने बोला ना कि business head है, means he is a leader. हम्म। Sur is a लीडर। leader, लीडरशिप right? क्वालिटी। हम्म। तो राइट। हम्म। leadership quality है, हम्म। ठीक है? हम्म। तो that's how you can check like how that has been working, which type of work, and leadership quality, because it's looking into the sun. Sun is a leader, is a king, ओके। or looking into the अपना 7th ऑफ ये यहाँ पर भी 7। देख रहा है, हाँ, 3rd को भी, हम्म। तो ही तो वो अपना गेन, अपना कम्युनिकेशन भी इनिशिएशन अच्छा लेना है। सब खुद ही हम्म। कर रहे हैं। एंड बैठा है कहाँ पर? 8th हाउस में, तो देख रहा है कहाँ पर? वेर इज लुकिंग इनटू 7th एस्पेक्ट, 7। हम्म। एंड 5th। 7th। हस्बैंड, अगेन हस्बैंड कहाँ देख रहा है? पत्नी को, 9। मुझे सेकंड हाउस को। एंड लग्न को देख रहा है, और 9th 7th हाउस। को देख रहा है। नहीं, ये फोर कौन कौन सी नहीं, दृष्टि होती है मंगल की? हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर मंगल। फॉर मंगल? अच्छा, फॉर मास हाँ। ना, हस्बैंड इज मास, राइट? 4, 8, फिफ्थ, सो 7। 9। 1 2 3 नहीं, 4, 4, 8, फोर 7 है। 4 फोर 8 एट 7। सेवन है, 4, 8, फोर में 7। वो भी देख रहा है 11th को। So ओ, he also मंगल भी is a देख रहा है। Dabang. He is as a leadership quality, looking for that 11th house as a fourth aspect. तो उसको कमाएगा, then he will feel it like okay, I'm happy. फिर उसके बाद 7th aspect and तो वो खुद कमाएगा, खुद इनिशिएशन लेगा, कम्युनिकेशन करेगा। 3 नंबर की राशि है ना, हम्म। जेमिनाई, हम्म। 3 नंबर। सो वो किस टाइप को? ही इज ट्राइंग इट, he has a fire, he has a leadership quality, he will try to communicate, try to initiate it. तो ये 7th and 8th aspect is in 3rd house. He will take the initiation itself, खुद लेंगे, खुद हम्म। काम करेंगे, खुद इनिशिएशन लेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, why it is not done, so what is the problem, he will take the initiation by himself. तो थर्ड हाउस किसके लिए था? कौन बताएगा? हु विल टेल? थर्ड हाउस करेज के लिए था। स्पीच। करेज, और स्पीच करेज, करेज। स्पीच, एफर्ट, करेज है, स्पीच मनी। है, इनिशिएशन, एफर्ट है, सिबलिंग है। रैंकिंग है, सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग है। सो वो खुद ही जो है ना, अब मतलब वर्क के मामले में बात करेंगे तो अगर तो इनिशिएशन यहीं से है ना, करेज यहीं से, तो ही ओके। विल टेक द करेज एंड विल टॉक, गो हेड एंड देन टॉक कि व्हाई नॉट विल डू दिस वन इन द ऑफिस इटसेल्फ। तो वो खुद ये जो है तो हम ये भावत भावम हो गया, दैट इज कॉल्ड भावत भाव, राइट? भावत दीदी ने भावत भावन। भावन पढ़ा है ना, वो ये जो मैं हाँ, बता हाँ। रही हूँ उन भावत भावन के हिसाब से बता रही हूँ कि उनके लिए ये तो
जो है उनका हाउस, इनका हाउस जरूर है, बट इनके लिए जो है फावत भवन 8 हाउस हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट योगा हम्म बताओ। हाँ आगे नेक्स्ट। बढ़ो, फटाफट खत्म करते हैं तो। हाँ। नीच नीच भांग। नीच नीच भंग राजयोग। तो नीच भंग राजयोग योग क्या होता है? Who will tell? जैसे मेरा कोई है शायद ये मोनिका, मेरे चार्ट में देखो आप, शायद मैं शायद मैं भी कंफ्यूज भी हूँ। नहीं, मैं ये नीच भंग होता है क्या, मैं बताती हूँ ना। जैसे माना वो है, सैटर्न है, मतलब ये आप सैटर्न सोचो। हम्म, सैटर्न एरीज में जाके वो हो जाता है, नीच भंग हो जाता है ना उसका, हाँ, नीच का, नीच हाँ। नीच का हो जाता है। नहीं, नीच का हो सैटर्न जाता है। एरीज में जाके नीच का हो जाता है। तो उसका नीच भंग कौन करेगा? ये उसका जो लॉर्ड मतलब एरीज का लॉर्ड एरिस होगा, का मंगल होगा। हाँ, अगर उसका मंगल। एस्पेक्ट पड़ रहा है या उसमें बैठा है वो, तो वो उसका नीच भंग कर हम्म देगा। और और जैसे कितने मेरा तरीके के देखो, हाउ पे? जुपिटर, मेरा नहीं मेरा देखो, जुपिटर, मेरा सैटर्न, एट, सैटर्न का नीच भंग जुपिटर करेगा। नहीं मेरा जो है ना एथ मार्स हाउस भी करेगा, में दोनों करेंगे। मून बैठा हुआ है, मून सन बुध सब बैठा हुआ है, मंगल। तो इसका नीच भंग, मून का नीच भंग मंगल करता है, ऐसे ही है ना? एक मिनट लगाती हूँ। मून का नहीं, वो लॉर्ड देखना ओके, पड़ेगा ना, राशि को। आई एम गोइंग टू रिंकू मून आपका का चार्ट नीच लगाती हूँ। भंग बुध करेगा। बुध भी है, हाँ। नीच भंग बुध मून का नीच करेगा। भंग बुध करेगा। एक मिनट मैं देख एक लूँ, हाँ। सेकंड, एक मिनट मिनट, मैं एक भी सेकंड, जिस देखूं। राशि मैं में एक वो बार उच्च लगा का रही हूँ, आप होता क्या है। कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड मैं लिख लूँ। नहीं, अ, हाँ। मेरा 29 नवंबर 9। हम्म 1978। 1978। टाइम? टाइम 4 बजे शाम में। 4 बजे मतलब 12, 16 राइट? 16। हाँ 16, हाँ। और स्टेट? और प्लेस पटना बिहार, पटना बिहार। PAT। PATNA। बिहार आएगा शायद। हाँ। बिहार, और यहाँ पर पटना। पटना। हम्म। लेट मी सेव दिस वन टू। अब तीनों के सेव भी कर लो। हाँ, हाँ तीनों फिर का नेक्स्ट सेव टाइम, भी कर लो आप। हाँ फिर नेक्स्ट टाइम पे वो सेव रहेगा। हम्म ओके। सो यहाँ पर ओ आपके 8 हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हाँ। तभी आपके पास एनर्जी है ताकि आप योगा करवाते हो और सब काम कराते हो। ओके। बट इसमें ये हाँ आप नीच का बताइए तो कि देखो नहीं नीच। है आप, ना। इसमें तो मून, हाँ मून जो है नीच का है, शी इज करेक्ट। हाँ। और वैसे भी अच्छा, मून यहाँ दोनों पर है में तो है। हाँ, तो मून नीच का हम्म है एंड 8 हाउस में है। तो तो आप, इसको वीनस करेगा ना, इसका नीच नहीं भंग। नहीं, मंगल मंगल। मंगल मंगल या तो मंगल। देख ले, मंगल या तो देख ले या एक्सल्टेड हो जाए। अच्छा, वृश्चिक राशि में है ना, हाँ हाँ। तो मंगल स्कॉर्पियो, का है, मंगल का। मास, वेयर द मास? मास उधर ही है ना, एथ में ही है। मार्च में उधर ही ही है है, ना, 8 में ही हाँ है। 8 में ही है, हाँ हाँ तो हाँ। नीच तो में इसका हो रहा नीच है। भंग कर रहे हैं, हाँ। हाँ तो साथ में बैठ करके उसका नीच भंग कर इसका रहा है नीच तो भंग वो, कर रहे हैं। हाँ तो वो इनकम नीच भंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इसीलिए आप योगा एंड ऑल, या आप सारी एनर्जी इसी टाइप की है आपकी। जैसे तो मंगल इट्स अगर गुड। 8 में बैठा होता है तो क्या करता है? हाँ। मंगल क्या, 8 में इसको बाद में अभी उठाएंगे बताया तो था। चैप्टर। हाँ, ये तो हाँ आउट ऑफ टॉपिक हो गया, ये आउट ऑफ द हाँ, और टॉपिक। थोड़ा सा ये बाद में उठाएंगे कि जब हम कुंडली पढ़ेंगे किसी नहीं, की, हर मतलब एक एक जैसे नीच प्लानेट उठा भंग के। कर रहे हैं तो नीच भंग से रिजल्ट क्या आएगा, मेरा ये इसलिए पूछ रही हूँ। देखो सो हाँ, क्या नीच भंग का है रिजल्ट नीच क्या का आएगा? मतलब, नीच का मतलब क्या है, हाँ तो कितना रिजल्ट देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लानेट हाँ। इज गिविंग यू 100% रिजल्ट, और प्लानेट इज हम्म। गिविंग यू 50% रिजल्ट, और प्लानेट इज गिविंग यू 0% रिजल्ट। तो अभी दीदी बताएगी कि द परसेंटेज कितना, किस हिसाब से परसेंट, अभी बताया नहीं है, बताने दीजिए। तो 0% रिजल्ट,
10% result, 30% result, 50% result, or 100% result. So Raj Yoga will give a 100% to 100% result. Niche planet will give you a 0% result. If it is Niche Bhang, means पहले तो वो नीचता करेगा, means it is creating a problem, and then somebody will come up and then will help you out to come out from that. जैसे किसी को आप कह सकते हो बहुत अच्छा बच्चा था, ठीक है, एंड ड्रग लेने लगा, बहुत टैलेंटेड था, समहाउ वो ड्रग लेने लगा, फिर कोई उसकी लाइफ में आया, उसने उसको ड्रग से निकाला और उसको लाइफ पूरा बना दिया, वो बहुत आगे बढ़ गया। बट वो पर्सन उसकी लाइफ में जैसे कोई हो गई, शादी कर ली उसके साथ और उसको वो लेके निकल ली और आगे बढ़ा दी, तो आगे निकल गया वो। तो इस तरीके से आप समझ लो कि कोई आया, उसको उस जगह से, भले ही अच्छा था बंदा, लेकिन वो उसको वहां से लेके चला गया, तो उसको निकालना पड़ा। तो नीचता की लेकिन भंग करके हटा दिया, मतलब आपको राज योग मिला, बट उससे पहले नीचता की और उसको फिर भंग किया, फिर वहां से निकाला। मीन्स द पर्सन इज इन लाइक सिटिंग समवेयर ड्रिंकिंग इट, और वो इज एल्कोहलिक पर्सन, उसको somebody is coming out, taking out from that place, और उसको फिर कहीं और ले जा करके अच्छी नौकरी दिलाना या कुछ भी है, वट एवर इट इज, उसको भंग कर हाँ, दिया। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया उसका, तो वो लाइफ ठीक हो गया। ये जो मेरे लाइफ में जो काफी चेंजेस आया है। इनफैक्ट शुरू में स्टार्टिंग में ही जब मैं 5 इयर्स की थी तभी, अब फादर का जो ट्रांसफर हुआ उसके बाद हम लोग का लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया। तो मे बी इसके वजह से, नीच भंग से। हाँ, आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो हम्म, कि हम्म, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। मून इज इन, पहले तो मन है सबसे पहले, तो हम्म, माइंड जो है हम्म, आपका बहुत जल्दी बार बार आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, करता है। मन, हाँ, तो मन काफी पहले तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट। करता था। हाँ, हाँ। बिकॉज अभी आपने एथ हाउस की एनर्जी ऑक्युपाइड कर ली, तो अभी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, आप यू कैन इजिली हम्म रिकवर बाय योरसेल्फ। अगर ये नहीं हम्म करते, आप योगा वगैरह नहीं करते, देन ये आपको बहुत परेशान करते। आपने इस हाउस को कड़ के रखा है कि ओके मैं योगा करूंगी, हम्म, मेडिटेशन करूंगी, ये सारी चीजें करूंगी, सो दैट दिस हाउस विल नॉट क्रिएट ए प्रॉब्लम। वहां पर हम्म बहुत ही सॉफ्ट प्लानेट मन बैठा है, मून बैठा है, आपको अगर नहीं करते तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेके जाता। तो आपने बहुत अच्छा हम्म किया ये सारी चीजें करें, और ये करते रहिएगा हमेशा पूरी लाइफ। हम्म बिकॉज योर मून हम्म, इज, एक तो एट्थ हाउस है, एंड एट द सेम टाइम वो हम्म, नीच का हो गया है, बट वो नीच भंग कर हम्म, रहा है, विच इज गुड, यानी कि आपका मंगल आपको बहुत हेल्प कर रहा है। तो आपका मंगल यहाँ पर है, तो आप भी, अगर मैं कहूंगी कि रेमेडी के रूप में आप हनुमान चालीसा डेली करो। इट इज रियली हेल्प, नॉट फॉर यू, फॉर योर हस्बैंड हेल्थ एज वेल। मंगल की पूजा हम्म जरूर से, हम्म एट्थ हाउस में मंगल अगर है तो यू शुड हैव टू डू तो इट। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर हस्बैंड एज वेल। वो हस्बैंड का मारक है, और मार्स इज हम्म इज अ प्लैनेट जो कि आपका सर्जरी का प्लैनेट है, एक्सीडेंट का प्लैनेट है, ठीक है। लास्ट ईयर दवा, मेरे हस्बैंड का 4 सर्जरी हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो है एक्सीडेंट और सर्जरी का प्लैनेट है, और वो मारक प्लैनेट है, तो आप चेक करो हम उनके उसमें तीनों कि का दशा मार्क तो यही नहीं बैठे थी, हैं। आपकी दशा हाँ तो हम। नहीं थी, उनकी दशा तो नहीं थी, या क्या प्रॉब्लम थी। जस्ट सिट एंड हम्म चेक कि क्या क्या क्यों हुआ ऐसा, व्हाई इट इज हैपनिंग। हम्म, और आप ये मंगल, आपको मंगल के लिए आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा मंगल, उनको हम्म हनुमान जी की पूजा करिए, कुछ नहीं होगा। देयर इज वन हम्म केस, एक का मंगल राहु 12th हाउस में है, उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड ही हैज ए हार्ट अटैक, ठीक है। और हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में थे एडमिट, 3 5 दिन थे हॉस्पिटल में, और उनका बीपी बढ़ गया। तो अरे हम्म दीदी भी आ गई। तो बीपी बढ़ गया, लेकिन उनके घर वाले पूरा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे, एंड और फिर उसके बाद 5 दिन के बाद ना सर्जरी हुई, कुछ नहीं हुआ, और वो ऑटोमेटिकली बीपी नीचे हुआ, हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो 5 दिन के बाद ठीक हो गए, घर वापस आए। तो मतलब मतलब कई केसेस ऐसे देखे हैं हाँ, मैंने, जो मिरेकल।
हम्म। ये होता है। बस खत्म होने वाला है ये दीदी, आगे। हाँ, मैं ना ये ये मैं मैं खुद अपने आप में ये मानती हूँ कि मतलब सुंदरकांड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। नहीं, वो तो है, बहुत पावरफुल। वो तो है। तो आप हम्म। करिएगा, रिको अगर नहीं करते तो करिएगा डेली, और हस्बैंड से। हम्म। मैं अभी सो के उठी अच्छा, हूँ, पता है। चलिए सो जाइए, गुड सो जाइए। मॉर्निंग। नहीं नहीं, आप गुड हम मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।